इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं। और हम लोग फिर से यहाँ पर लेके आए हैं आप लोगों के लिए ये फंक्शन चैप्टर का और एक कॉन्सेप्ट, और वो है इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन, ओके। ये व्हाट इज द इन्वर्टिबल फंक्शन? ओके, दिस इज द क्वेश्चन एक्चुअली। इन्वर्टिबल फंक्शन, जैसे सपोज ये अच्छा, यहाँ पर देखिए, ये वीडियो शुरू करने से पहले समथिंग आई वांट टू टेल यू दैट all of you are giving a lot of support to my channel, and all of the subscribers are joining the classes as well, and you are just viewing the lectures, different lectures from the different chapters as well. But actually some followers or some students or some, I don't know, they are actually viewing the lectures, and they are actually listening the lectures very well, but they are not subscribing the channel as well. So just I want to tell you that please subscribe my channel, and just like and share also with everyone, so that all the students can get these conveniences from my side, and so that I can provide the too much helps to those students who are not getting the sufficient ingredients, sufficient materials because of this lockdown. And from my side, just I want to provide the helps to those people who are very much those who are staying in remote areas of this country, in the different corner. Okay, so just try to help me out. Okay, so please subscribe. Just that means if you subscribe my channel more, then actually this ranking of my channel will be increased. Okay, when the ranking will be increased, then automatically this videos and this lectures will be viral. Okay, so if this video will be viral, then so all of the students from the different corners of this country can enjoy my classes as well. Okay, so if you like my classes, then please subscribe, share, and like. These three things, please do it for me, and just help me to provide this kind of helps to the students as well. Okay, so just I am trying hard, and just I am trying of my best to provide you, or to provide all the things regarding the chapters, regarding the solutions as well. So subscribe my channel as well. Okay, so our today's concept is invertible function, that you can see invertible function. Okay, so invertible function, ये है क्या? What is invertible function actually? Okay, so in the function concept, what did I tell you? That a function actually two sets are required. दो सेट चाहिए यहाँ पर. अब दोनों सेट में पहला सेट जो है, सपोज मैंने एक एग्जांपल दिया था, पहला सेट जो है उसमें मैं हूं, सेकंड सेट जो है उसमें मेरे पिताजी हैं. ठीक है, अब जो है फंक्शन में क्या होता है, मैंने तुमको बोला था कि मेरे पिताजी को ढूंढ के लाओ, फिर मैं अपने पिताजी के साथ मैपिंग बनाऊंगा. ठीक है, तो मैं फर्स्ट सेट में कर रहा हूं, मेरे पिताजी जो है सेकंड सेट में है. तो आपने क्या किया, मेरे पिताजी को लेके आए मेरे पास, उसके बाद मैंने अपने पिताजी के साथ एक बॉन्डिंग बनाया है. ठीक है, अब क्या होता है, इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है, आपको उल्टा आना है. जैसे सपोज, जैसे फंक्शन में क्या होता है, मेरे पिताजी को आप ढूंढ के लाए. ठीक है, दैट मीन्स फर्स्ट सेट से सेकंड सेट की तरफ जा रहे हैं आप लोग. ठीक है, अब इन्वर्टिबल फंक्शन में क्या होता है, मेरे पिताजी आप लोग को बोल रहे हैं कि मुझे ढूंढ के लेके आने के लिए. मेरे पिताजी आपको बोल रहे हैं कि केबी रॉय जो है, जो सेकंड सेट में है, वो आपको बोल रहे हैं कि अभिक रॉय को ढूंढ के लाओ. तो आप क्या करेंगे, सेकंड सेट से फर्स्ट सेट की तरफ आएंगे, है कि नहीं? सेकंड सेट से क्या करेंगे, फर्स्ट सेट से तरफ आएंगे. तो ये जो उल्टा आ रहे हैं ना, डायरेक्शन उल्टा हो गया, यही फंक्शन को बोला जाता है इनवर्स फंक्शन. जब किसी भी फंक्शंस का जो डायरेक्शन है वो उल्टा हो जाए, वो होता है क्या, इन्वर्टिबल फंक्शन. ओके, सो यहां पर देखो, जैसे सपोज नॉर्मल फंक्शन
जब होता है कि एक वन वननेस हम लोगों ने चेक किया है, फिर उसके बाद ऑन्टोनेस हम लोगों ने चेक किया है, ठीक है। सो इन्वर्टिबल फंक्शन के लिए क्या चाहिए? इन्वर्टिबल फंक्शन एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट आया कहां से, ठीक है। जैसे सपोज यहाँ पर मैंने जो बोला है आपको, सेकंड सेट से फर्स्ट सेट की तरफ आएंगे आप लोग। एक मैं डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूं आप लोगों को, ठीक है। जैसे सपोज ये एक सेट है ए, तो ये एक सेट है बी। यहां पर मैं खड़ा हूं रॉय, और यहां पर मेरे पिताजी खड़े हैं के बी रॉय, ओके। तो ये जो नॉर्मल फंक्शन है इसका नाम क्या है? एफ दिया है मैंने, ठीक है। अब क्या होगा यहां पर? तो क्या यहां पर ए रॉय, ये मतलब मैंने आपको बोला है कि मेरे पिताजी को ढूंढ के लाओ, इसलिए डायरेक्शन जो है वो फर्स्ट सेट से सेकंड सेट की तरफ जा रहा था, ठीक है। ये अब क्या होगा? अब केबी रॉय आप लोगों को बोल रहे हैं कि अभी रॉय को ढूंढ के लाओ, देखो डायरेक्शन जो है वो उल्टा हो जाएगा। देखो ये डायरेक्शन क्या है? एफ क्या था? ए टू बी, हो गया। अब डायरेक्शन उल्टा हो गया, देखो बी टू ए। जब डायरेक्शन उल्टा हो जाता है तब उस फंक्शन को बोला जाता है ऐसे इनवर्स फंक्शन, और डिनोट क्या कैसे किया जाता है? एफ टू द पावर -1, ठीक है। दैट मीन्स सेकंड सेट से फर्स्ट सेट की तरफ अगर आओगे, दैट मीन्स फ्रॉम द फर्स्ट सेकंड सेट इफ यू आर कमिंग टू द फर्स्ट सेट, देन दिस सेट can be denoted by the inverse function or inverse mapping as well. So if the normal function is denoted by f, then the inverse function will be denoted by f to the power -1. Okay, so यहाँ पर देखो ये गया तो इनवर्स का कॉन्सेप्ट। ये जैसे सपोज यहाँ पर हम लोगों ने ये हेडिंग क्या दिया था कि इन्वर्टिबल फंक्शन का, ठीक है। सो इन्वर्टिबल फंक्शन और इनवर्स ये दोनों के बीच क्या रिलेशन है, ठीक है, दोनों एक ही है। जैसे सपोज कोई भी फंक्शन का इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो ये फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। तो दैट मीन्स फॉर गेटिंग दिस इन्वर्टिबल फंक्शन प्रॉपर्टी यू हैव टू प्रूव whether it is there exist the inverse function or not. ओके, तो हम लोग कैसे चेक करेंगे कि इनवर्स फंक्शन उसमें है कि नहीं? चेक करना है ना मुझे, तो ये कैसे चेक करेंगे? चेक करने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या है? सपोज नॉर्मल फंक्शन में जैसे हम लोगों ने 1 1 और ऑन्टोनेस हम लोगों ने चेक किया था, है कि नहीं? कब ये 1 1 होता है, कब ये ऑन्टो होता है, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। अब इनवर्स फंक्शन में ये दोनों का काम क्या है, थोड़ा मुझे बोलो। जैसे सपोज नॉर्मल फंक्शन में जैसे 1 1 प्रॉपर्टी होता है, 1 1नेस, इसमें देखो हम लोगों ने क्या किया था। सपोज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ फर्स्ट सेट में, सेकंड सेट में मेरे पिताजी खड़े हैं, ठीक है। अब जो है मेरे साथ मेरे पिताजी का रिश्ता, रिलेशन, मैपिंग, दैट मीन्स 1 1 मैपिंग, ठीक है। मेरे साथ दैट मीन्स मी एंड माय फादर, रिलेशन, द मैपिंग बिटवीन दिस 2 पर्सन, 1 1 मैपिंग, ओके। अच्छा, तो मेरे साथ मेरे पिताजी का रिश्ता, केबी रॉय अभिक रॉय रिश्ता है, रिलेशन है। तो एबी रॉय का पिताजी अगर केबी रॉय है, केबी रॉय का बेटा कौन होगा? मैं ही हूंगा, है कि नहीं? अगर मुझसे उनका रिलेशन है, अगर तुम रिवर्स भी आ जाओ, केबी रॉय से उल्टा आओगे तो कहां पर आओगे? मेरे पास ही आओगे, है कि नहीं? तो दैट मीन्स कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल होने के लिए ये फंक्शन को क्या होना पड़ेगा? 1 1 होना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल, जैसे सपोज ये केबी रॉय यहाँ पर है, अभिक रॉय यहाँ पर करें, ठीक है। अब अभिक रॉय और केबी रॉय के बीच क्या फंक्शन है, क्या मैपिंग है? 1 1 फंक्शन है, 1 1 फंक्शन। अब उल्टा आओगे तो ये भी तो 1 1 होगा ना। देखो ये उल्टा आओगे तभी ये 1 1 होगा, ठीक है ना। तुम्हें यहाँ पर कुछ मिलेगा, यहाँ पर सपोज है, तो यहाँ पर जैसे अभिक रॉय से तुम केबी रॉय की तरफ गए थे, केबी रॉय से भी अभिक की तरफ ही आओगे, तुम दूसरे की तरफ नहीं जाओगे, है कि नहीं? तो ये इसलिए ये जो है ये 1 1 होना पड़ेगा इनवर्स निकालने के लिए। इनवर्स जब एग्जिस्ट होता है तभी होता है कि 1 1 होना पड़ेगा। 1 1 होने से ही तो तुम्हें फर्स्ट सेट में कोई ना कोई मिलेगा यहाँ पर एक, है कि नहीं? तो 1 1 होना पड़ेगा। फिर उसके बाद जैसे सपोज यहाँ पर ए सेट, ये बी सेट, ये मैं यहाँ पर खड़ा हूं, और यहाँ पर केबी रॉय
1 खरे हैं, केबी रॉय 2 खरे हैं, ऐसे खरे हैं सब। तो ये है मेरे पिताजी, केबी रॉय 1 जो है वो मेरे पिताजी हैं। वेरी गुड। अब क्या होगा उसमें, अगर मैं इनसे अगर मैं रिवर्स भी आऊंगा तो मेरे साथ ही तो रिश्ता बनेगा ना। यहाँ पर देखो एरॉय के साथ ही रिश्ता बनेगा। अब सपोज ये जो केबी रॉय 2 है, इनके साथ अगर मैं रिवर्स आऊं यहाँ पर, वो किसके साथ रिलेशन बनाएगा? यहाँ पर तो है ही नहीं कोई। ये केबी रॉय 2 ये तो मेरे पिताजी नहीं है, वो दूसरा केबी रॉय है, ठीक है। तो उसके साथ इनका बेटा तो फर्स्ट सेट में है ही नहीं, तो ये किनके साथ मैपिंग बनाएगा? दैट मींस केबी रॉय 2 जो है वो सेकंड सेट में एक्स्ट्रा रह जाएगा, जिसका कोई भी मैपिंग फर्स्ट सेट के साथ नहीं होगा, है कि नहीं? तो दैट मींस ये जो केबी रॉय एक्स्ट्रा रह गया है सेकंड सेट में, ये एक्स्ट्रा रहने का मतलब क्या होता है? ये फंक्शन ऑन्टो नहीं होगा, ठीक है। तो अगर ये तो क्या उल्टा हो गया ना, उल्टा आ रहे हो, तो दैट मींस इनवर्स है। तो इनवर्स होने के लिए फर्स्ट सेट में कोई ना कोई रहना पड़ेगा, तो यहां पर तो नहीं है, ठीक है। तो दैट मींस इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है कि नहीं? उल्टा नहीं आ पाओगे तुम। सो दैट मींस यहां पर इनवर्स एग्जिस्ट होने के लिए जो है ऑन्टो होना पड़ेगा। ऑन्टो जो है वो होना पड़ेगा। ऑन्टो होने से क्या होता है? सेकंड सेट में कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं रहेगा जिसके साथ फर्स्ट सेट का कोई भी मैपिंग नहीं है, ठीक है। तो यहां से जैसे देखो ए रॉय के साथ केबी रॉय का रिलेशन है? और केबी रॉय से उल्टा भी आओगे तो भी यहाँ पर रिलेशन होगा, ठीक है ना। तो दैट मींस सेकंड सेट में कोई भी एक्स्ट्रा सेट एलिमेंट नहीं है यहाँ पर जिसका कोई भी मैपिंग फर्स्ट सेट के साथ नहीं है। सो दैट्स व्हाई ये जो फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन है, जो उल्टा डायरेक्शन में आ रहा है, वो उल्टा डायरेक्शन होने के लिए ऑन्टो होना बहुत जरूरी होता है, जिससे हम लोग को सेकंड सेट जो है, सेकंड सेट में ऐसा कोई भी एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं रह जाए जिसका कोई भी मैपिंग फर्स्ट सेट के साथ नहीं होगा, ठीक है। क्लियर? सो दैट मीन्स एक फंक्शन अगर उसका एक फंक्शन का अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो दैट मीन्स क्या है? दैट मीन्स वो फंक्शन जो है 1 1 और ऑन्टो ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब सपोज इनवर्स एग्जिस्ट हो गया है, 1 1 भी हो गया, ऑन्टो भी प्रूफ हो गया है, तो ये फंक्शन जो है तुम लिख सकते हो कि एफ इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब इनवर्स एग्जिस्ट करने के बाद एक मैं एग्जांपल तुम लोग को बोलूं, जैसे 2 का इनवर्स क्या होता है? 2 का इनवर्स क्या होता है? इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल, दैट इज 2 टू द पावर -1, दैट मींस हाफ। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या होता है? 1। तो जैसे 6 7 में तुम लोगों ने पढ़ा था, ये 1 को बोला जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, याद है तुम लोग को? आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और इसको बोला जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, याद है? ये तो नंबर्स में चला गया। अब फंक्शन में क्या होता है? ये 2 की जगह फंक्शन जो है एफ, और ये हाफ मतलब क्या है? 2 टू द पावर -1 है ना, 2 टू द पावर -1, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? एफ टू द पावर -1। दोनों के बीच मल्टीप्लाई। अब फंक्शन में तो मल्टीप्लाई नहीं होता है, फंक्शन में तुम क्या करोगे? ये कंपोज साइन यूज करोगे, कंपोज, एफ कंपोज एफ इनवर्स इक्वल्स टू ये आइडेंटिटी 1 भी तो तुम, ये मैथमेटिकल है, मैपिंग में तुम 1 नहीं लिख सकते, मैपिंग में क्या लिखोगे? आई। ये आई मतलब है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी फंक्शन का डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा था, है कि नहीं? सो दैट मींस एफ कंपोज एफ इनवर्स इक्वल्स टू आई, एफ कंपोज एफ इनवर्स इक्वल्स टू आई। तो दैट मींस कोई भी फंक्शंस का अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो, इफ एनी फंक्शन इज इन्वर्टिबल, एक फंक्शन इन्वर्टिबल है और फंक्शन इनवर्स एग्जिस्ट करता है, दोनों एक ही बात है, ठीक है। किसी क्वेश्चन में दे सकते हैं कि चेक दैट द इनवर्स एग्जिस्ट, ओके, तो ये भी बोल सकते हैं चेक दैट एफ इज इन्वर्टिबल, ओके, दोनों एक ही बात है, एफ इज इन्वर्टिबल एंड एफ इनवर्स एग्जिस्ट है, दोनों एक ही क्वेश्चन है, दोनों का प्रोसेस सेम ही है। तो यहाँ पर अगर कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल हो, दैट मीन्स इनवर्स है उसका, दैट मीन्स ये प्रॉपर्टी तुम्हें सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा। विदाउट दिस प्रॉपर्टी यू कैन नॉट गेट द आइडिया वेदर इट इज इन्वर्टिबल और नॉट, ओके है।
सो दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग को क्या मिला, एक फंक्शन इन्वर्टिबल हो दैट मीन्स एक फंक्शन को 1 1 होना पड़ेगा। 1 1 क्यों होना पड़ेगा, क्योंकि इससे है इससे इसका रिश्ता उल्टा हो गए, इनसे इसका रिश्ता होना पड़ेगा 1 1, ठीक है। अब जो है ऑन्टो, इनसे इनका रिश्ता अब उल्टा हो गया, इनसे भी इनका रिश्ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सेकंड सेट में अगर कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट रह जाए जो मेरे पिताजी नहीं है, तो मेरे पिताजी का रिश्ता तो मेरे पास साथ होगा। अब मेरे पिताजी के अलावा दूसरे सेट में और कोई भी रहे, उनका जो है रिलेशन मेरे साथ रहेगा क्या, कभी नहीं रहेगा, है। तो दैट मीन्स वो सेकंड सेट में जो एलिमेंट है वो एक्स्ट्रा रह जाएगा। देखो हम लोगों ने एग्जांपल लिया था यहाँ पर, है? तो यहाँ पर जो है सेकंड सेट में कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं रह सकता इनवर्स फंक्शन होने के लिए। तो दैट मीन्स सेकंड सेट में कोई भी एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं रहेगा, दैट मीन्स व्हाट, वो ऑन्टो होना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑन्टो जब होगा और 1 1 जब होगा तब जो है एक फंक्शन हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, वो है f⁻⁻1, f इनवर्स बोला जाता है उसको, ठीक है। और उसका डायरेक्शन क्या कहां से आएगा, सेकंड सेट से फर्स्ट सेट की तरफ, ठीक है। नॉर्मल फंक्शन में जैसे फर्स्ट सेट क्या होता है, डोमेन सेट होता है, सेकंड सेट क्या होता है, रेंज सेट होता है, ठीक है। अब f इनवर्स उल्टा जब आओगे तब सेकंड सेट हो जाएगा डोमेन और फर्स्ट सेट हो जाएगा रेंज सेट, याद रखना, ठीक है कि नहीं। सो दैट मीन्स यहां पर ये जो कॉन्सेप्ट है इन्वर्टिबल फंक्शन का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग जो है इन्वर्टिबल फंक्शन का जो है डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन, उसको हम लोग प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, हैं, कैसे इन्वर्टिबल फंक्शन को एक्सप्रेस किया जाता है, कैसे क्या नहीं, वो सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। जैसे सपोज यहाँ पर जो f कंपोज f इनवर्स है, कंपोज f इनवर्स है, ये एक तो फंक्शन है ना, उसको x और i x ऐसे लिख सकते हैं, बोथ साइड x को इनपुट डाल सकते हैं, तो ये तो दोनों फंक्शन है, ठीक है ना। इनपुट तो डाला ही नहीं हम अभी तक हम लोगों ने, तो ये इनपुट है x और x। तो ये कॉम्पोजिट फंक्शन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, f इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू i x, मतलब क्या है, x है ना, ऐसे लिख सकते हैं ना। जैसे हम लोगों ने कॉम्पोजिट फंक्शन पढ़ा था ना कि f कंपोज g ऑफ x, उसको कैसे लिख सकते हैं, सॉरी g कंपोज f ऑफ x, उसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, g ऑफ f x। जो फर्स्ट में है वो फर्स्ट में आएगा, जो सेकंड में है सेकंड में आएगा। तो यहाँ पर भी सेम f, यहाँ पर आ गया f इनवर्स x इक्वल्स टू x। तो दैट मीन्स ये इस चीज को हम लोग ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स एक फंक्शन इनवर्स फंक्शन अगर एग्जिस्ट करे तो ये दोनों फंक्शन का जो कंपोजिट होता है उसका आंसर क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। जैसे नॉर्मल 2 × ½ इक्वल्स टू 1 होता है, वही थ्योरी तुम लोग अप्लाई करोगे यहाँ पर, जस्ट यहाँ पर साइन थोड़ा चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन साइन की जगह कंपोज, 1 की जगह आई, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं डेफिनेशन की तरफ, इन्वर्टिबल फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन की तरफ जाते हैं, ओके। इन्वर्टिबल फंक्शन मतलब f एक फंक्शन a to b, एक सेट से फर्स्ट सेट से सेकंड सेट की तरफ, और f इनवर्स जो होगा f⁻⁻1 ये इनवर्स एलिमेंट होगा, इनवर्स फंक्शन होगा, वो b से a की तरफ आएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग एक डेफिनेशन लिखे यहाँ पर, जस्ट ये लिखो, यहाँ पर जस्ट हेडिंग इन्वर्टिबल फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन, ठीक है सर। तो ये इन्वर्टिबल फंक्शन जो है, इफ f such that a to b, एक फंक्शन है, एक डायग्राम, जस्ट लेट अस ड्रॉ a diagram here, a and b set, ओके। f एक फंक्शन है, दैट मीन्स a to b, ओके। तो इट मीन्स यहाँ पर x और यहाँ पर होगा fx, ओके। देन फॉर ऑल x belongs to a, fx belongs to b as the unique image, okay।
Now, if we consider, okay, अब हम लोग इनवर्स फंक्शन सोच रहे हैं। मैंने क्या बोला था कि जब नॉर्मल फंक्शन होता है तब ये फर्स्ट सेट से सेकंड तरफ की तरफ जाएगा, एरो ये डायरेक्शन देखो। अब ये उल्टा होगी, ये जब उल्टा होगी उसको बोला जाता है f टू द पावर -1। तो यहाँ पर ये के बी रॉय है, के बी रॉय, और यहाँ पर ए रॉय, ठीक है। तो जैसे ये के बी रॉय से तुम मेरे तरफ आ रहे हो, दैट मीन्स ये इनवर्स फंक्शन हो जाएगा, उल्टा फंक्शन हो जाएगा, ठीक है, उल्टा। तो इफ वी कंसीडर ए फंक्शन f to the power -1 such that b2a, okay, where b2 a के तरफ आ रहा है कि नहीं। तो यहां पर इनपुट क्या हो जाएगा, b में जो एलिमेंट्स है वो इनपुट हो जाएगा। तो when fx belongs to b, then x belongs to a। देखो यहाँ पर ये इनपुट हो जाएगा, डायरेक्शन किस तरफ है, ये इनपुट ये आउटपुट, तो ये हो जाएगा इनपुट, दैट इज fx belongs to b, और आउटपुट ये निकल जाएगा, दैट इज दिस वन। सो f inverse function is called inverse function, okay, inverse function. It can be defined as, यहां पर इनपुट क्या है, fx है, इनपुट क्या है, fx है, फंक्शन का नाम क्या है, f इनवर्स हो गया। तो f इनवर्स ऑफ fx, f इनवर्स और f कैंसिल होके क्या निकलता है, क्या निकलता है, x, ठीक है। सो दैट इज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। सो कोई भी इनवर्स फंक्शन को हम लोग अगर डिनोट करने के लिए जाए तो एक f टू द पावर -1 एक फंक्शन हम लोग को लेना पड़ेगा जो सेकेंड सेट से फर्स्ट सेट की तरफ आ रहा है, दैट मींस f इनवर्स सच दैट b2a, ओके, दैट मींस द डोमेन सेट विल बी, दैट मींस द फर्स्ट सेट, इनपुट सेट विल बी द सेकंड सेट एंड द आउटपुट सेट विल बी द फर्स्ट सेट एज वेल। देन the input will be fx belongs to b and the output will be x belongs to a, okay, that means f inverse function is called the inverse function as well, and it can be defined as f inverse of fx equals to x, f inverse of fx equals to x, okay. So when this function exists, sorry, when this inverse exists, then sorry, then f is invertible, okay, f is invertible, okay, that is, देखिए लिखो ऐसे f इनवर्टिबल लिखा, उसके बाद that is ये जो f इनवर्स ऑफ fx लिखा है ना, that is f इनवर्स ऑफ fx equals to x, तो इसको क्या बोला जाता है, देखो f इनवर्स कंपोज f ऐसे लिखा जा सकता है ना, equals to x मतलब क्या है, i x, है कि नहीं। सो यहाँ पर x x कैंसिल, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर देखो f इनवर्स कंपोज f इक्वल्स टू i, कह सकते हैं। कैन आई राइट दिस लाइन, f कंपोज f इनवर्स और f इनवर्स कंपोज f इक्वल्स टू i, and that was discussed and this invertible function, in the starting of this invertible function, f compose f inverse equals to I, as I told you, the 2 into 2 to the power -1 equals to 1, just like yours, this 2 into 2 to the power -1 equals to 1, f compose f inverse equals to I,
Okay, so here the actually this function is going to be invertible when the inverse exists. Okay, and when this inverse will be existed, the function, when this function is 1 1 and onto as well, then the inverse will be there. Okay, so if the function is actually, if the inverse exists, then the function will be invertible also. Okay, so if you want to find the invertible function, then you have to check whether this function is 1 1 or onto or not. Okay, if this function is bijective, that means 1 1 and onto, then this function is going to be invertible also. Okay, so the main thing is that the function is, normal function is what, मुझसे मेरे पिताजी का रिश्ता, और इनवर्स फंक्शन क्या है, पिताजी से मेरा रिश्ता, उल्टा. ठीक है, एक ही बात है, देखो डायरेक्शन सिर्फ चेंज हो गया. ठीक है, नॉर्मल फंक्शन में डोमेन होता है ये फर्स्ट सेट, रेंज होता है सेकंड सेट, और कोडोमेन जो भी बोलो. और इनवर्स फंक्शन में क्या हो जाता है, ये हो जाता है डोमेन, सेकंड सेट हो जाता है डोमेन, और फर्स्ट सेट हो जाता है रेंज. ठीक है, रिमेंबर दिस वर्ड. ओके, so when the order pair will be constructed, because this function, it is a mapping, so after getting this mapping you will get some order pairs, 1, 2 order pair, 1, 2 order pair, 3, 4, just like that, dot 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 dot. F inverse में ये order pairs क्या आएगा, उल्टा हो जाएगा, 2, 1, 4, 3, ऐसे order pair आ जाएगा. that means पहले normal order pair में जो first element था वो हो जाएगा second element inverse में, second element जो था वो फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा इनवर्स में. ठीक है, जस्ट डोमेन और रेंज को चेंज कर दो, वो हो जाएगा एफ इनवर्स. ठीक है, तो दैट मींस कॉन्स्टेंटली वी कैन से द फंक्शन विल बी इन्वर्टिबल व्हेन दिस कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड, एफ कंपोज एफ इनवर्स इक्वल्स टू आई. ओके, सो regarding this concept, invertible function, very important concept it is. Just we are going to solve the different questions as well. Okay, हम लोग कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे. जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया. Question number 1. If f such that, very basic question, 1, 2, 3, 4 है, 2, 10, ये एक मैपिंग दिया गया है. इज इट इन्वर्टिबल, तुम्हें चेक करना है. इन्वर्टिबल, ये क्या इन्वर्टिबल होगा, या फिर इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा क्या, वो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा क्या, ये चेक करने के लिए तो मुझे 1, 1 और ऑन टू दिखाना पड़ेगा. ओके, तो मुझे ये चेक करना है इनडायरेक्टली. दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड टू वेरीफाई वेदर इट इज 1, 1 और ऑन टू, 1, 1 एंड ऑन टू और नॉट. ओके, सो हियर, सो देखो यहाँ पर एक सेट है ये 1, 2, 3, 4, दूसरा सेट है यहाँ पर 10. ओके, तो अगर एक मैपिंग में लूँ 1 के साथ 10, 2 के साथ 10, 3 के साथ 10, सो f इक्वल्स टू, एक मैपिंग बन गया, ऑर्डर पेयर भी बन गया. देखो 1, 10, फिर उसके बाद 2, 10, 3, 10 एंड 4, 10 हो गया, निकल गए. तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये क्या 1, 1 है, ये तो मेनी 1 हो गया ना, मेनी 1. देखो मेनी 1, सो इट इज नॉट 1, 1 आई थिंक. देखो यहाँ पर इनपुट तो 4 वैल्यू है, आउटपुट तो 1 वैल्यू निकल रहा है. दैट मींस ये तो 1, 1 तो नहीं हो सकता है, तो ये नहीं होगा 1, 1, मेनी 1 है. सो f इज नॉट इन्वर्टिबल. वेरी बेसिक क्वेश्चन. इन्वर्टिबल ही, ऑनटोनेस तो चेक करना जरूरत ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये हो गया. 1, 1 नहीं हुआ, दैट मींस ये इन्वर्टिबल भी नहीं होगा. f इज नॉट इन्वर्टिबल. सेकंड क्वेश्चन जो है वो लिखो. सेकंड क्वेश्चन क्या है, a एक सेट दिया हुआ है ना, सॉरी नो, f सॉरी a एक सेट दिया हुआ है 0,
-1 -3 2, ओके। और बी एक सेट दिया हुआ है -9 -3 0 6, ओके। और f एक फंक्शन है जो ऐसे b की तरफ जा रहा है, ऐसे b की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो दैट मींस अट्रैक्शन हो रहा है, जैसे तुम लोग जाते हो एक दूसरे से अट्रैक्ट हो गए, ये उधर जाएगा, ये इधर जाएगा, है कि नहीं। सो वही ए बी की तरफ जा रहा है, तो दैट मींस ए में जितना सारा एलिमेंट्स है वो सब बी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर f a to b and fx equals to what? 3x, I think. 3x. Check whether it is invertible or not. तुम्हें चेक करना है ये क्या इन्वर्टिबल होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फंक्शन दिया गया है, दो सेट भी दिया गया है कि नहीं। तो यहाँ पर तो हम लोग तो ये मैपिंग बना सकते हैं, ऑर्डर पेयर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो लेट अस कंस्ट्रक्ट द ऑर्डर पेयर फर्स्ट. Different types of order pairs will be there, and after getting the order pair, that will be actually cleared whether it is 1 1 or 1 1 and 1. So here solution start करो. A set क्या दिया हुआ है? A set 0 -1 -3 2, okay, and B set क्या दिया हुआ है? -9 -2, sorry, -3 0 6. और fx क्या दिया हुआ है? 3x, नो। नाउ x का वैल्यू कहां से चूज करना है? एस एक्स, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, तो x का वैल्यू पहले क्या चूज करना है? 0. सो f ऑफ x मतलब क्या है? 3x, तो दैट इज 3 into 0, आंसर इज 0. x का वैल्यू -1, सेकंड -1 चूज करना है, तो f ऑफ x का वैल्यू क्या होगा? 3 into -1 इक्वल्स टू -3. x का वैल्यू -3 चूज करना है, दैट इज fx इक्वल्स टू 3 into -3 इक्वल्स टू -9. x इक्वल्स टू 2 चूज करना है, दैट इज fx इक्वल्स टू 3 into 2 इक्वल्स टू 6. तो यहाँ पर आउटपुट क्या क्या आ रहा है? ये 4 आउटपुट है, ये 4 आउटपुट है, देखो है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर मैं एक सेट डायग्राम ड्रॉ करूँ, इफ आई ड्रॉ ए सेट डायग्राम हियर, यू कैन सी क्या है? 0 -1 -3 2, ठीक है, और ये है -9 -3 0 6. x का वैल्यू 0 0, इनपुट 0 आउटपुट 0, इनपुट भी 0 आउटपुट 0, है कि नहीं। फिर -1 के लिए, -3 के लिए, 2 के लिए, तो यहाँ पर क्या 1 1 मैपिंग आ रहा है या फिर 1 1 मैपिंग आ रहा है या फिर मेनी 1 आ रहा है? यहाँ पर देखो x का एक वैल्यू के लिए fx का एक वैल्यू मिल रहा है कि नहीं? ऐसा कुछ है कि x के दो वैल्यू के लिए fx का एक वैल्यू मिल रहा है? यहाँ पर तो दिखाई नहीं दे रहा है। fx यहाँ पर देखो x का डिफरेंट 4 वैल्यू है, 4 वैल्यू चूज करने से fx का डिफरेंट 4 वैल्यू निकलता है। तो दैट मींस हियर f is 1 1. सेकेंड सेट में कोई भी एलिमेंट एक्स्ट्रा है यहाँ पर जिसका कोई भी मैपिंग नहीं है? दिखाई दे रहा है क्लियरली? नहीं है। So here f is on 2 also. So 1 1 भी हो गया, on 2 भी हो गया, that means f is invertible. ठीक है नहीं? क्लियरली डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है नहीं। सो हो गया, ऐसे क्वेश्चन है। अब थर्ड क्वेश्चन जो है हम लोग लिख लें, 4 सेकंड है, 1 2 3 4, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया कि f such that q to q, okay, given that fx equals to 3x plus 5, okay, prove that f is invertible, f is invertible,
एफ क्या इन्वर्टिबल हो, ये तुम्हें चेक करना है, इट्स नॉट चेक करना, प्रूव करना है, इट शुड बी प्रूव्ड, दैट मीन्स ऑब्वियसली दैट विल बी इन्वर्टिबल, you have to prove this thing by hook or by crook. So here fx equals to thrice x plus 5 where f such that q to, अब मुझे 1 1 चेक करना है, 1 1 है कि नहीं। 1 1 चेक के लिए लेट क्या लेना पड़ता है, x1 और x2 दो वैल्यू लेना पड़ता है। कहां पर लूंगा मैं, रेशनल नंबर सेट में। देखो इनपुट सेट यहाँ पर रेशनल नंबर है, तो उसके लिए हम लोग चूज क्या करेंगे कि fx1 इक्वल्स टू fx2 चूज करेंगे। हम लोगों ने देखो यहाँ पर डिस्कस किया है ये अनदर वीडियो में, ठीक है। सो fx1 मतलब क्या है, 3x1 प्लस 5 और ये होगा 3x2 प्लस 5। देखो 5 5 कैंसिल, 3x1 इक्वल्स टू 3x2, 3 3 कैंसिल, x1 इक्वल्स टू x2, 1 1 हो गए। सो f इज 1 1। अब ऑन्टोनेस में आओ, ऑन्टो y इक्वल्स टू fx होता है, हम लोग जानते हैं ये y इक्वल्स टू क्या होता है, 3x प्लस 5। ओके, दैट मीन्स यहाँ पर x का वैल्यू मुझे निकालना है, दैट इज y माइनस 5/3। तो मुझे यहाँ पर देखना है कि y का कुछ भी वैल्यू के लिए यहाँ पर x का वैल्यू, y का कुछ भी रेशनल नंबर वैल्यू के लिए x का वैल्यू यहाँ पर रेशनल नंबर में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चेक करो तो यहाँ पर होता है कि नहीं, y का ऐसा कुछ वैल्यू है रेशनल नंबर वैल्यू जिसके लिए x का वैल्यू अनडिफाइंड आ रहा है। देखो आ रहा है कि नहीं। According to me, there is no y value. For that, the value of x is going to be undefined. There is no value of y, okay, in the rational number set. तो here y का कुछ भी वैल्यू यहाँ पर चूज करो, x का वैल्यू कभी भी यहाँ पर अनडिफाइंड नहीं आएगा, रेशनल नंबर में ही आएगा, q में ही आएगा, फ्रैक्शन ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तुम बोलोगे सर y का वैल्यू 5 चूज करें तो 0/3 इज ऑल्सो रेशनल नंबर, ओके, क्योंकि p बाई q फॉर्म में होना चाहिए ना, और p और q दोनों इंटीजर होना चाहिए, ओके, और ये q है नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ये पर तो 0/3, 0 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, तो 0/3 so is also a rational number. So for every value of y belongs to q, there will be the value of x belongs to q. So f is onto. F is onto हो गया। So ये onto हो गया, ये 1 1 भी हो गया। It means what? 1 1 and onto. F is invertible. This is the condition. So F is invertible. Just write the last statement. So F is invertible. So F is invertible. So F is invertible. Very interesting question. हो गया, देखो लिख लो, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। देखो ये कितना डिफरेंट क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया है, बहुत सारा लेक्चर्स हो गया है। और ये चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब और लाइक ये शेयर कर लो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन लोगों को ठीक तरह से गाइडेंस भी नहीं मिलता, गरीब बच्चे भी हैं जिन लोगों को ठीक तरह से गाइडेंस नहीं मिलता, ये ट्यूशन फी दे नहीं सकते वो लोग, ठीक है। तो जितना तुम लोग सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, उतना ही वो जो वीडियोस है, वो लेक्चर्स हैं, वो रैंकिंग में आएगा। दैट मीन्स क्या है, वो यूट्यूब में वो शो करना शुरू हो जाएगा। तो
डिफरेंट रिमोट एरियाज से जो बच्चे हैं वो लोग भी देख सकते हैं ये सब वीडियोस को देख के। आई थिंक वो लोग भी अच्छा मार्क ला सकते हैं मैथ्स में, है वो लोग भी सीख सकते हैं मैथ्स। तो इसके लिए जो है सब्सक्राइब और ये लाइक शेयर ये सब जितना भी हो सके, फॉर द सेक ऑफ दिस चैनल एंड फॉर द सेक ऑफ मी, just share, subscribe and this like. These three things actually are very important. Okay, so you need to actually give me the support, and actually till now that you are giving me a lot of support for making this various kinds of lecture. That's why just I'm actually I'm getting encouraged for making this kind of various videos, lectures from the different from the different corners of this book of this R.D. Sharma and this NCERT. This R.D. Sharma, this book is very essential, and actually here I have no book and I have nothing here. Okay, so all the books and actually books and the materials and whatever it is, all the things and all the setup actually are kept in my working place. Okay, so just before the lockdown, just I came my home because of my personal work, and at that time the lockdown was announced, okay, and declared also. So after that I was become stuck at my home. So actually in home there is no setup and there is nothing here because I am not actually staying here. So all the setups and all the books and all the things are kept in my working place, in my actually rent house. Actually all the things, books, various kinds of books that you will see, various kinds of books and various things actually that I have regarding my subject, various and yesterday also from this Rachana Sagar publication, that means together with. Yesterday they called me. And they wanted to provide the together with book of class 11 and 12. Okay, and that I had given the address of my present address here. Just I think after this lockdown they will provide me the books as well. Okay, so maybe it may be actually provided just before the lockdown also. So let hope for the best. Okay, so just for this making this video, just I am actually giving too much efforts so that all the actually the unfortunate people and unfortunate students, those who have no the actually sufficient conveniences, those are not getting that kind of guidance in this mathematics subject as well, and that's why they are becoming very much scared about this subject. So my target is to provide the actually the too much conveniences from my side, that so much as possible that I am trying my best to give you the support so that you can just so that you like this subject as well. So for that I am actually taking this initiative. For that I need your support. Okay, so without your support I can't do anything whatever I want. Okay, so if you want this channel to be shined, or to be actually to be approachable for each and every corner students, each and every students of this country, then please subscribe and this like and this share this channel as so much as possible with your friends and with the localities and with your neighbors, whatever you have around you. So just please subscribe and this like and share. So now our next question is, what? Okay. 4. F such that R2 close of interval infinity. Okay. And fx equals to x square plus 4. Prove that
prove that f inverse exists. Prove that f inverse exists. Okay, and find f inverse also. f inverse का वैल्यू भी निकाल के दिखाना है. इन्वर्टिबल तो पहले दिखाना ही. f inverse exist मतलब क्या है? इस वर्ड का मतलब क्या है? इन्वर्टिबल. f is invertible. एक ही बात है. f inverse exist, f is invertible. दोनों एक ही बात है. तो यहाँ पर तुम्हें देखना है कि ये प्रूफ करना है कि f इनवर्स एग्जिस्ट करता है यहाँ पर. तो यहाँ पर एक काम करो, ये क्वेश्चन को ये r प्लस दे दो. r प्लस मतलब क्या? ऑल द पॉजिटिव रियल नंबर्स. ऑल द पॉजिटिव रियल नंबर्स. ठीक है. नाउ यहाँ पर f such that r plus 2 4, infinity. And fx क्या दिया हुआ है? fx equals to x square plus 4. Okay. Now let for the one-oneness property x1, x2 belongs to where? R plus. That means all the positive real numbers. Let fx1 equals to fx2. fx1 equals to fx2. Okay. So fx1 equals to fx2. इसका मतलब क्या है? fx1 equals to fx2. देखो यहाँ पर x1 square plus 4 and x2 square plus 4. हो गया? है कि नहीं? देखो. So that means यहाँ पर 4 क्या होगा? कैंसिल होगा. 4 क्या होगा? कैंसिल. x1 square and x2 square. यहाँ पर देखो x1 और x2 का वैल्यू, x1 और x2 का वैल्यू कहाँ से ले रहे हो तुम? पॉजिटिव नंबर से ले रहे हैं. x1 और x2 का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव नंबर ले रहे हो क्या? r प्लस दिया हुआ है. ठीक है. तो यहाँ पर जो ये x1 स्क्वायर इक्वल्स टू x2 स्क्वायर गिवन है, तो यहाँ पर बहुत सारे अगर मैं स्क्वायर कैंसिल करूं, क्योंकि पॉजिटिव नंबर ही लेना है मुझे, तो प्लस माइनस की यहाँ पर जरूरत ही नहीं है. ठीक है ना. क्योंकि प्लस साइन ही मुझे लेना है यहाँ पर. ठीक है. तो प्लस x1 होल स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, x1 इक्वल्स टू x2. अगर माइनस होता, ये अगर पूरा r सेट होता, तो यहाँ पर 1-1-नेस थोड़ा प्रॉब्लम होता. तो यहाँ पर r प्लस है, दैट मींस ऑल द पॉजिटिव वैल्यूज. x1 का वो पॉजिटिव वैल्यू, x2 का भी पॉजिटिव वैल्यू, बीच में इक्वल साइन है, तो ये स्क्वायर का तो कुछ मतलब ही नहीं है. ठीक है. तो ये अगर 2 लूं, ये भी 2 होगा, पॉजिटिव वैल्यू. अब बोलोगे कि सर अगर यहाँ पर पूरा रियल नंबर होता, तो देखो x1 स्क्वायर, दैट मींस यहाँ पर x1 की जगह 2 पुट कर सकता हूँ. 2 स्क्वायर मतलब 4. इस x2 की जगह में मैं -2 पुट कर सकता हूँ. -2 इक्वल्स -2 होल स्क्वायर. दिस आंसर इज आल्सो 4. उसके बाद x1 इक्वल्स टू x2. ये चीज तो नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर x1 का वैल्यू 2 लिया था, यहाँ पर x2 का वैल्यू -2 लिया था. तो 2 और -2 तो इक्वल नहीं हो सकता है कि नहीं. दैट मीन्स यहाँ पर जो है r प्लस लेना जरूरत है फॉर गेटिंग दिस प्रूफ हियर. सो x1 इक्वल्स टू x2. दैट मीन्स f इज 1-1. f इज 1-1. हो गया. अब आओ ऑनटोनेस प्रॉपर्टी. तो ऑनटो के लिए क्या होता है? लेट y equals to fx. So that means y equals to x square plus 4. So there is x square equals to y minus 4. So there is x equals to root over y minus 4. मतलब x equals to root over क्या आ गया? y minus 4 आ गया. अब तुम्हें यह देखना है कि y का वैल्यू कुछ भी तुम चूज करो, y का वैल्यू कुछ भी तुम चूज करो. कहां से? ये है तुम्हारा आउटपुट सेट. ये आउटपुट सेट कैसा दिया गया है? आउटपुट सेट है कि तुम 4 या फिर 4 से ग्रेटर वैल्यू चूज कर सकते हो. 4 से नीचे तुम चूज नहीं कर सकते हो. यहाँ पर आउटपुट जो वैल्यू है वो 4 या फिर 4 से ग्रेटर चूज करो. 4 से नीचे चूज नहीं कर सकते हो. दैट मींस ऑल द वैल्यूज ऑफ y विल बी 4 और ग्रेटर देन 4, नॉट लेस देन 4. यहाँ पर सेट ही ऐसा दिया गया है. हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर सेट तो गिवन है, गिवन पार्ट को तो और चेंज नहीं कर सकते हम लोग, है कि नहीं. तो दैट मींस यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर y का वैल्यू 4 चूज करूँ, 4 minus 4 रूट 0, आंसर इज 0. 0 इज ऑल्सो रियल नंबर. इनपुट आ गया. हो गया है कि नहीं. तो यहाँ पर काम करो, ये
क्वेश्चन में जो है ये ओपन इंटरवल दे दो, तो शायद क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर देखो 0 आ गया, 4 माइनस 4 0, एक्स का वैल्यू 0 आ गया है कि नहीं, तो एक्स का वैल्यू 0 आ गया मतलब क्या, एक्स का वैल्यू अगर 0 आ गया तो यहाँ पर तो इनपुट सेट जो है वो आर प्लस है, पॉजिटिव रियल नंबर है कि नहीं, तो 0 तो पॉजिटिव रियल नंबर नहीं, ये तो न्यूट्रल नंबर है, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। सो यहाँ पर ये ओपन इंटरवल होगा, ठीक है, ये ओपन इंटरवल होगा, जस्ट करेक्ट द क्वेश्चन है, ओपन इंटरवल होगा। तो दैट मीन्स क्या है, ये 4 भी हम लोग चूज नहीं कर सकते हैं, 4 से ऊपर चूज कर सकते हैं, 4 से ऊपर चूज करो, जैसे 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6। ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दो, तो शायद देखने में गलती हो गई, क्योंकि मैंने बोला है कि यहाँ पर बुक नहीं है, मैं ये नेट से दूसरे से मंगाता हूँ, तो लिख के देता है कि सर ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये क्वेश्चंस में देख के यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर ओपन इंटरवल हो गई, तो ये हो गया, देखो यहाँ पर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 4, इंफिनिटी, ओपन इंटरवल 4, इंफिनिटी, द वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू r प्लस, हो गया। सो f इज व्हाट, ऑन टू, डिपेंडली प्लस, सो f इज ऑन टू, दैट मींस यहाँ पर y का वैल्यू 4 से ग्रेटर कुछ भी वैल्यू चूज करें, आंसर जो है वो रियल नंबर में आ रहा है, पॉजिटिव रियल नंबर में आ रहा है, तो दैट मींस f इज ऑन टू, f ऑन टू हो गया। सो f 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, दैट मींस f क्या इन्वर्टिबल होगा, ऑब्वियसली f इज इन्वर्टिबल, हो गया। सो f इज व्हाट, invertible, just write this statement, so f is invertible, so f is invertible, और जस्ट तुम ऐसे भी लिख सकते हो, और f इनवर्स exists, तो अगर मैंने बोला था कि f अगर इन्वर्टिबल हुआ, नाउ f इन्वर्टिबल है, इसका मतलब है हम लोग कैसे लिख सकते हैं उसको, f कंपोज f इनवर्स इक्वल्स टू I, लिख सकते हैं हम लोग, है डेफिनेशन में देखो, अगर f इन्वर्टिबल है दैट मींस व्हाट, दिस कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड, विदाउट दिस कंडीशन a function cannot be invertible here. So f compose f inverse equals to I, inverse exist करता है, that means 2 into 2 to the power minus 1, आंसर तो 1 ही होएगा, so that means f compose f inverse equals to I, so f compose f inverse equals to x equals to I x। तो यहाँ पर देखो, जैसे कॉम्पोजिट फंक्शन का जैसे हम लोग बनाते हैं, क्या होता है, f of f inverse x equals to ix, ix का आंसर तो क्या होता है, x ही होता है, आइडेंटिटी फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन x ही होता है। सो यहाँ पर f x क्या दिया हुआ है, fx क्या दिया हुआ है, देखो ये है fx, तो यहाँ पर देखो x यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर तो fx की जगह क्या लिखा हुआ है, f इनवर्स x लिखा हुआ है, तो दैट मींस यहाँ पर भी तुम्हें x की जगह क्या लिखना है, f इनवर्स x लिखना है, दैट मींस देखो तो ऐसे लिख रहे हैं, f इनवर्स x होल स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू x। सो यहाँ पर देखो f इनवर्स x होल स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 4, अगर यहाँ पर मैं स्क्वायर हटा लूं, स्क्वायर अगर हटा लूं वहां पर क्या आएगा, रूट आएगा, है कि नहीं, है कि नहीं। सो यहाँ पर जब तुम्हें बोला गया कि फाइंड f इनवर्स, इसका मतलब क्या है, रूट ओवर x माइनस 4 इज द आंसर ऑफ f इनवर्स। सो f इनवर्स x इक्वल्स टू रूट ओवर x माइनस 4, रूट ओवर x माइनस 4 इज द आंसर ऑफ f इनवर्स, ठीक है, हो गया, इन्वर्टिबल हो गया, दैट मींस क्या, यहाँ पर तो ये इन्वर्टिबल हो गया, मींस ये हम लोग को f कंपोज f इनवर्स इक्वल्स टू I, यही हम लोग को चूज करना है। जब तुम्हें whenever this condition, this question used to be given that the find f inverse, after getting the inverse property that f is inverse or f is invertible, up to this part
one proof is there. Okay, one part is there, and after that, if this part will be given that find f inverse, जब ये find f inverse दिया जाता है तब तुम्हें ये condition use करना है, f compose f inverse equals to I. As I know that when the function will be invertible, then f compose f inverse equals to I. After that you have to proceed to the next step. Okay, so ये हो गया एक पार्ट. ठीक है, अब नेक्स्ट और एक क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं. ठीक है, ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये सब क्वेश्चन जो है एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंट्रेंस के लिए भी और बोर्ड के लिए भी. ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 होगा शायद, है कि नहीं. तो ये क्या होगा, इफ f such that r plus 2 this 5 minus 5 infinity given fx equals to 9x square plus 6x minus 5. 6x minus 5 हो गया. फंक्शन दिया गया है, सेट भी दिया गया है, इनपुट सेट ये पता है इनपुट. ठीक है, ये आउटपुट हो गया. नाउ तुम्हें चेक करना है, चेक इट इज इन्वर्टिबल और नॉट, इन्वर्टिबल और नॉट चेक करना है. ठीक है, तो अब एक के बाद एक आए. इन्वर्टिबल चेक करना है, देखने वन चेक करना है, ऑन कोनेस चेक करना है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो यहाँ पर देखो f सच दैट r प्लस एरो माइनस 5 इंफिनिटी. ओके, और fx क्या गिवन है यहाँ पर 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5. यहाँ पर इनपुट सेट क्या दिया गया है, r प्लस, दैट मीन्स ऑल द पॉजिटिव रियल नंबर्स. और आउटपुट क्या दिया गया है -5 टू इंफिनिटी, दैट मीन्स -5 से लेके इंफिनिटी तक कुछ भी चूज कर सकते हो. -5 से नीचे चूज नहीं कर सकते, दैट इज -6 -7 चूज नहीं कर सकते हो. तो लेट 1 के लिए तो x1 इक्वल्स टू x2, सॉरी x1 कोमा x2 बिलोंग्स टू r प्लस fx1 इक्वल्स टू fx2 एज यूजुअल. तो यहाँ पर क्या होगा, 9x1 स्क्वायर 6x1 minus 5 9x2 square plus 6x2 minus 5 both side cancel. 9x1 square minus 9x2 square plus 6x1 minus 6x2 equals to 0. तो यहाँ पर देखो 9x1 minus x2 x1 plus x2 plus 6 common x1 minus x2 equals to 0, है कि नहीं. तो यहाँ पर देखो ये एक टर्म, ये एक टर्म, दोनों टर्म में से कॉमन आता है. देखो x1 माइनस x2 कॉमन आने के बाद क्या आता है, 9x1 प्लस 9x2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0, राइट. तो यहाँ पर देखो जब हम लोग बाइजेक्टिव प्रॉपर्टी चेक करते थे, मुझे याद है कि हम लोगों ने ये दो फैक्टर का कंडीशन जब अराइज हुआ था तो किसी एक इस फैक्टर को नॉट इक्वल्स टू 0 दिखाना था फॉर गेटिंग दिस x1 minus x2. So now we have to verify that will it be not equals to 0 or not. ये हम लोग को वेरीफाई करना है not equals to 0 होगा कि नहीं. जब ये not equals to 0 होगा तभी x1 equals to x2 मिलेगा तुम्हें. अगर ये पार्ट 0 equals to 0 नहीं हुआ तो it is not sure that all the time you will get this x1 equals to x2 as well. Okay, so it is not sure for the different values of x1 and x2 is there in the r plus part. Okay, so यहाँ पर देखो since अब चेक करो थोड़ी, यहाँ पर 9x1 प्लस 9x2 प्लस 6 ये इक्वल्स टू 0 होगा या नॉट इक्वल्स टू 0 होगा. नाउ लेट मी टेल यू, नाउ यूज योर ब्रेन. यहाँ पर देखो here x1 and x2 all the values belong to the positive real number set. That means whatever the value of x1 and x2 are
are the positive real numbers. Okay, so that means if you put all the positive numbers here, that means in place of x1 and x2, if you put positive numbers, apart from that, you have the positive sign in the middle. Everywhere that you can see positive sign, then how could you get this equals to 0 here? Equals to 0 कभी possible होगा इसका? I think it is not possible to get this equals to 0. This is obviously not equals to 0 for every value of x1 and x2 as well. You can see x1 और x2 का कुछ भी वैल्यू यहाँ पर चूज करो r प्लस से, कभी भी यहाँ पर 0 नहीं आएगा. Always not equals to 0 होगा. So अगर ये not equals to 0 है, then that it is sure that x1 minus x2 equals to 0. That is x1 equals to x2. So f is 1 now. F is 1. Very simple. है कि नहीं? Now okay, लिख लो. Okay, अब इस लॉकडाउन में तो पूरा ये दिमाग खराब करके रखा है. ना ही घर से निकल सकते हैं, ना ही कुछ नहीं कर सकते. मतलब एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया है. देखो ये कोई भी दुकान खुला नहीं मिल रहा है. मैं कब से ढूंढ रहा हूँ एक माइक. ओके, एक माइक लेने के लिए, क्योंकि ये साउंड क्वालिटी है थोड़ा बढ़ाने के लिए माइक लेने के लिए सोच रहा था, लेकिन कोई भी दुकान नहीं मिल रहा है. तो वही लॉकडाउन खुलने के बाद सब सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में आएगा. पूरा इंडिया ही कंट्रोल में आएगा, है कि नहीं? तो आफ्टर दिस लॉकडाउन आई थिंक दिस इकोनॉमिक सिस्टम will be broken down. Okay, everywhere that you can see that approximately 4-5 lakhs jobs will be finished because actually the manufacturing companies, manufacturing actually these industries, they have no business in this lockdown. So after this lockdown, I think to recover their economic fall, okay, they have to decrease their this employees number. Okay, so I think those who are actually the lower class employees, they will be terminated. Okay, so after this lockdown, I think very crucial situation is coming. Okay, so we have to face, we have to stay together, we have to be coordinated to face this kind of lockdowns, this kind of economic profile. Okay, economic and then after this actually the costings of everything will be raised. Okay, and everything, everywhere that you will face the problems. Okay, and when the school, college and this educational institute, when it will be opened, that is not sure, that is not definite also, because everywhere every state government just used to tell the same thing, that it is not sure when it will be opened. That means this mall, when where the social gathering used to be happened, actually it used to be happened very importantly. So that's why this malls and this actually this school, college, and various institute, coaching centers, that will be closed, that will not be opened before this autumn break, I think. So the very dangerous situation is coming. Okay, so what to do? Actually nothing in our hand now. We are fighting with the microorganism. No, we can't see, and actually we can't feel this microorganisms, and when that you are going to be affected, that will be not sure. So any time, anywhere that you can be affected, you can be infected also. So after getting this infected, actually you will be quarantined and you will be isolated also from the social interactions.
So just stay safe and just stay at home, okay, and so that you cannot be infected by this deadly virus, okay. So just stay at home and enjoy the videos and enjoy the lectures as well. And for the physics, different teachers are there, okay. For chemistry, different teachers are there, those who are actually running their coaching classes, online coaching classes. So enjoy these videos, okay. Just stay at home and don't go outside without any urgent work, okay. So I think this is the time of your patience, and how much you have this patience, that will be examined, that will be evaluated in this time, okay. That means we have to stay together to actually to survive. We have to stay together to fight against this kind of epidemic, okay. So anyhow, we have to cover up this situation, and we have to pray that every situation, every circumstances is going to be normal. So just we have to pray. So now for the ontoless property, and subscribe my channel, like, share, don't forget this thing, okay, so that I can serve all the students as well, okay? Those who are stuck their home, okay. Now ontoless property, for the ontoless property, now y equals to y equals to fx. So y equals to fx means what? 9x square plus 6x minus 5. And I told you, whenever this quadratic formation used to be given, then 9x square plus 6x minus 5 minus y equals to 0. It is 9x square plus 6x minus common, 5 plus y equals to 0. So quadratic formula, minus 6 plus minus root over b square, that is 6 square, minus 4 into a into c. It is minus into 5 plus y, whole divided by 2 into 9. X equals to minus 6 plus minus 36 minus minus plus 20, 180, and then plus 36y whole by 18. Okay, so now x equals to minus 6 plus minus root over 216 plus 36y, okay, 36y by 18. Now minus 6, suppose inside this root, if I take 36 as common, and I think 6 plus y by 18, x equals to minus 6 plus minus, so this 36 inside the root, that means 6 will come, y plus 6 divided by 18, okay. So if 6 is common, that is what? Minus 1 plus minus root y plus 6 by 18. So this 3, it is x equals to minus 1 plus minus root over y plus 6 by 3. That is your final expression. Now you have to check for every values of y, we are getting the definite value of x, okay. So we have to check. So here for the different values of y, from which set minus 5 to infinity, that is minus 5 से लेके infinity तक, माइनस 5 भी यहाँ पर चूज कर सकते हो, देखो क्लोज इंटरवल दिया गया है, माइनस 5 भी यहाँ पर चूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. तो माइनस 5 चूज करेंगे यहाँ पर, माइनस 5 प्लस 6 प्लस 1, ओके. यहाँ पर उसके बाद माइनस 5 के बाद माइनस 4 प्लस 6 प्लस 2, माइनस 2 प्लस 6, ऑल द पॉजिटिव वैल्यूज विल कम, नेगेटिव वैल्यूज तो रूट के अंदर कभी नहीं आएगा. So that means for each and every values of y, we are getting the definite value of x. Just write the statement. For each and every value of y, we are getting the definite value of x. For every values
ऑफ वाई बिलोंग्स टू, ऐसे लिखना है -5 to infinity, वी आर गेटिंग definite value of x belongs to where? Set is what? Set क्या था? R plus no? R plus. So f is on top. है कि नहीं? यहां पर देखो r प्लस x का वैल्यू तो पॉजिटिव आना चाहिए, x का वैल्यू तो क्या आना चाहिए, यहाँ पर पॉजिटिव आना चाहिए। और यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर अगर मैं ये प्लस माइनस है ना मिडल में, और रूट के अंदर तो पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा, तो रूट का प्रॉब्लम तो है ही नहीं। यहाँ पर देखो प्लस साइन और माइनस साइन दो चीजें है ना, यहाँ पर x का वैल्यू एक प्लस लेके है, एक माइनस लेके है। अगर मैं यहाँ पर माइनस ले लूं, माइनस तो माइनस कॉमन चला आएगा, है कि नहीं? तो अगर मैं माइनस ले लूं, माइनस कॉमन भी चला गया, तो x का वैल्यू देखो निगेटिव में निकल गया ना, तो x का वैल्यू तो निगेटिव नहीं हो सकता है, r प्लस दिया गया है, यहाँ पर पॉजिटिव रियल नंबर है। तो यहाँ पर ये जो प्लस माइनस दिया गया है, वो सिर्फ प्लस को हम लोग को कंसिडर करना है, यहाँ पर माइनस को कंसिडर नहीं करना है, माइनस को कंसिडर नहीं करना है। जस्ट रिमेम्बर दिस थिंग, माइनस को नहीं कंसिडर करना है। तो यहाँ पर ये चीज लिखना है तुम्हें, एक काम करो, ये चीज ये लाइन लिखने से पहले एक छोटा सा लाइन लिख लो यहाँ पर, दैट विल बी बेटर। ओके, सिंस x इक्वल्स टू -1 माइनस y प्लस 6/3 नॉट इक्वल्स टू, सो x इक्वल्स टू -1 प्लस √y प्लस 6/3। अब यहाँ पर जो है y का कुछ भी वैल्यू पुट करो, करने के बाद देखो x का वैल्यू r प्लस में ही आएगा, सब पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर तुम y का वैल्यू यहाँ पर -5 भी पुट करो, 1 आएगा, 1 कैंसिल, 0/3। फिर उसके बाद यहाँ पर एक काम करो, ये 0/3 ये ओपन इंटरवल। एक काम करो, ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा करेक्शन कर दो, ये -5 इंफिनिटी है, क्योंकि अगर यहाँ पर देखो -5 अगर चूज कर लिया, यहाँ पर -5 प्लस 6 1 और -1 कैंसिल, देखो 0/3, x का वैल्यू तो 0 आ रहा है, ठीक है? तो 0 तो पॉजिटिव रियल नंबर तो नहीं है कि नहीं? सो दैट मीन्स यहाँ पर -5 में क्लोज इंटरवल मत दो, वो ओपन इंटरवल रहेगा, ठीक है? सो ऐसे लिख लो, ये क्वेश्चन थोड़ा करेक्शन कर लो, -5 इंफिनिटी होगा ये, ठीक है? सो यहाँ पर f इज क्या होगा, f इज ऑन टॉप, f इज ऑन टॉप, ठीक है? यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा -5 इंफिनिटी कर दो, क्वेश्चन में -5 इंफिनिटी, क्योंकि यहाँ पर -5 यहाँ पर क्लियरली देख रहे हैं हम लोग, -5 अगर पुट करें यहाँ पर -5 प्लस 6 देयर इज 1 √1 1 अरे -1 कैंसिल, 0/3, x का वैल्यू तो 0 आ रहा है कि नहीं? तो अगर 0 आ रहा है दैट मींस व्हाट, ये क्वेश्चन में नहीं होगा, ठीक है? और ऊपर से ये जो है ठीक है? सो अगर तुम यहाँ पर क्लोज साइन भी रख दो, -5 इंफिनिटी क्लोज भी रख दो, तो यहाँ पर ये ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें तो ये चेक करना था शायद क्वेश्चन में, चेक वेदर इट इज ऑन टू और नॉट। ओके, सो अगर यहाँ पर क्लोज इंटरवल भी होता तो यहाँ पर कुछ नहीं होता, यहाँ पर वो 0 आता तो तुम लिखते हो कि f इज नॉट ऑन टू, सो f इज नॉट इनवर्टिबल हियर। ओके, सो तुम ये सेट भी ले सकते हो, क्लोज इंटरवल सेट भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम यहाँ पर, ठीक है? तो अब आ गो यहाँ पर नाउ, सो f इज इनवर्टिबल, f इज इनवर्टिबल, f इज इनवर्टिबल, हो गया? तुम ओपन इंटरवल भी ले सकते हो, क्लोज इंटरवल भी ले सकते हो। ओपन इंटरवल होगा तो डायरेक्टली ऑन टू हो जाएगा, है कि नहीं? तो f इज इनवर्टिबल भी हो जाएगा। अगर यहाँ पर क्लोज इंटरवल लोगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्लोज इंटरवल होने से तो -5 भी चूज कर सकते हो, x का वैल्यू 0 आ जाएगा, 0 जो कि r प्लस में बिलोंग नहीं करता है।
पॉजिटिव रियल नंबर में बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, तो ये इन्वर्टिबल नहीं होगा। और क्वेश्चन में भी चेक वेदर बोला है ना, चेक करना है, प्रूफ नहीं बोला है, तो चेक बोला है, तो चेक होने से तो वो तो नहीं होगा, बस हो गया। ठीक है ना, और प्रूफ होने से तो जो है ना, प्रूफ होने से तुम्हें ये ओपन इंटरवल ही लेना पड़ेगा। जब इस क्वेश्चन में ओपन इंटरवल नहीं होगा, जब प्रूफ होगा। ठीक है, तो ये देख लो हो जाएगा, ये एफ इज इन्वर्टिबल ऑल्सो। इफ एफ इज इन्वर्टिबल देन एफ कंपोज एफ इनवर्स इक्वल्स टू आई। हो गया। सो यहाँ पर देखो एफ कंपोज एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू आई एक्स, क्योंकि तुम्हें देखो अभी क्वेश्चन में शायद एफ इनवर्स निकालने के लिए बोला है कि नहीं, एफ इनवर्स निकालने के लिए बोला है ना, प्रूफ करने के लिए बोला है शायद, तो वो तो तुम्हें दिखाना है करके। तो अब आओ तो यहाँ पर एफ कंपोज एफ इनवर्स मतलब क्या है, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इक्वल्स टू आई एक्स, आई एक्स मतलब एक्स। सो एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स मतलब क्या होगा, यहाँ पर एफ एक्स क्या था देखो, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, तो यहाँ पर 9x स्क्वायर दैट इज 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6x, हर जगह x की जगह तुम्हें एफ इनवर्स x बिठाना है, -5 इक्वल्स टू x। तो 9 एफ इनवर्स x होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू एफ इनवर्स x -5 माइनस x इक्वल्स टू 0। देखो ठीक है कि नहीं, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो x प्लस 5 हो गया, ठीक है। तो ये देखो एक क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन बन गया। किसका क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन, एफ इनवर्स x का। ये किसका इक्वेशन है, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एफ इनवर्स x का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो यहाँ पर अगर मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करूं, एफ इनवर्स x इक्वल्स टू -6 प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर दैट इज 36 माइनस 4 इंटू a इंटू c, c मतलब है कि नहीं, सेम पहले जैसा ही 2 इंटू 9 दैट इज 18, अगर -6 प्लस माइनस रूट ओवर 216, जैसे पहले जैसे हम लोगों ने किया है सेम कैलकुलेशन, 216 प्लस 36x बाई 18। सो यहाँ पर कैंसिल करके -6 प्लस माइनस y, सो ये 1 हो जाएगा, 1 y प्लस 6 बाई 18, है कि नहीं, हो गया। अगर तुम्हें यहाँ पर एफ इनवर्स निकालना है तो यहाँ पर ये चीज तुम्हें करके दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एफ इनवर्स का वैल्यू क्या आ रहा है, ये आ रहा है ना, तो प्लस माइनस तो हम लोग यहाँ पर कंसीडर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है, यहाँ पर ये बीच वाला जो माइनस है वो हम लोग यहाँ पर चूज नहीं कर सकते। सो ऐसे लिख लो, सो एफ इनवर्स एक्स इक्वल्स टू, सो एफ इनवर्स एक्स इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस रूट ओवर y प्लस 6 बाई 3, जस्ट ऐसे ब्रैकेट देखिए। यहाँ पर एफ इनवर्स एक्स इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस रूट ओवर y प्लस 6 बाई 18 निकला, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोगों ने बोला था कि यहाँ पर प्लस माइनस जो है वो माइनस हम लोग चूज यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको ऐसे लिख लो, since minus this y plus 6 by 18 okay not equals to 0, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, not belongs to the R plus, so f inverse x equals to -1 plus root over y plus 6 by 18 हो गया। तो ये हो गया तुम लोग का f inverse x का जो है वो आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वीडियो में बहुत सारा यहाँ पर एडिटिंग हुआ है, क्योंकि ये सुबह मैंने किया है। सुबह करने के टाइम देखो ये बारिश आ गया, साउंड भी बहुत, नॉइज भी बहुत आ गया था, बैकग्राउंड नॉइज बहुत आ गया था। उस वीडियो को फिर से मैंने कैंसिल किया, कैंसिल करके अभी जो है शाम को मैंने ये फिर से वो नया वीडियो बनाया। बनाने के बाद देखो ये फिर मैंने उसको एडिट किया, एडिट करने के बाद हो गया। इसलिए देखो ड्रेसिंग्स भी चेंज है यहाँ पर, ठीक है। सुबह था दूसरा ड्रेसिंग्स, अभी दूसरा ड्रेसिंग्स, ठीक है। तो ये तो सॉरी फॉर दैट, because the rain was there and the continuous raining was there in the morning also, so that's why I couldn't able to make the videos as well,
continuously. So that's why I'm very much sorry. But the main thing is that f inverse x equals to -1 plus root over y plus 6 by 80. That is the complete answer. Okay, so because in the question actually, and here also the same, the main thing is that in two questions the question was wrong. ओके, मीन्स ये क्वेश्चन जो है हम लोग मुझे दूसरे ने प्रोवाइड किया है, ठीक है, तो वो हो सकता है कि वो उठाने के टाइम जो है वो गलती कर दिया है, वो मेरे पास भेज दिया, मैं जब यहाँ पर बोर्ड में करने के लिए गया कि देखा हूँ कि सेट और कैलकुलेशन के बीच यहाँ पर रिलेशन नहीं आ रहा है, तो ये जो क्वेश्चन जो करेक्शन मैंने किया है वो करेक्शन ठीक तरह से कर लेना, ठीक है। तो ये होता है, ये सब प्रिंटिंग मिस्टेक तो होता है, ये सब नॉर्मल बात है? तो वो भी किसी ने किसी बुक से ही लिया है शायद, क्योंकि लॉकडाउन में तो किसी के पास भी बुक नहीं होगा, वो भी शायद नेट से लिया है, ऐसा कुछ सोर्स से लिया है, ठीक है। उसमें हो सकता है कि ऐसा कुछ गलती है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ठीक तरह से करेक्शन कर लेना, फिर उसके बाद ये जो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सॉल्व करो उसको ठीक तरह से, देखो आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये सब वीडियोस, ये लेक्चर्स जो आप लोगों को दिया जाता है, तो इसको अगर आप लोग, इफ यू लाइक दिस वीडियोस और दिस लेक्चर्स, जस्ट सब्सक्राइब माय चैनल and push the bell icon as well and like my video, just press the like button also, okay. And thank you very much for joining with me, and okay, goodbye, thank you, and Jai Hind also.